All right. Assalamu alaikum. My name is Dr. Haris Jabbar. I'll be we'll be moving along with the O-levels biology. Acha, we would be starting off with the Walaikum Assalam, Betul. We would be starting off with the very first chapter today. We'll be starting off with cells. Classification हम लोग आखिर में जाके करेंगे. ठीक है, this is something that I have to repeat every year. थोड़ा सा dry topic है. And there is no fun in teaching or studying the topic, तो उसको हम लोग आखिर के लिए रखते हैं. We're going to start off with cells today, and we'll be moving on with diffusion, osmosis, and active transport, uh, and then enzymes, and we're going to cover the core topics first. दो तीन चीजें before we start. सबसे पहली चीज कि I asked a lot of questions. That does not mean कि I am testing you in any way. I just want to know how much you know so that we can build up onto it. तो उससे मेरे लिए आसानी हो जाती है कि instead of giving you an entirely new concept. दूसरी चीज ये कि once we'll be और other मेरी writing बहुत हसीन है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो please let us know that. All right. So let's start off with the very first chapter that we call as cell structure and function. Right. Now, अब देखो सबसे पहली चीज जब भी हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू नो आज नहीं, आज तो ट्यूसडे नहीं था, आज इज कि वेडनेसडे। हमारे पास सेल्स क्या है. ऑलराइट, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू नो इज व्हाट सेल्स आर. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, हाउ वुड यू डिफाइन सेल्स? कैन एनीवन टेल मी कि सेल्स क्या होता है? हाउ वुड यू गाइस डिफाइन सेल्स? हाँ जी, एनीवन? Cells are the basic building block of all life, smallest functional unit of life. Very good, smallest unit, very good. देखो, जब भी हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं, very good guys, very good. देखो, जब भी हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं, it's fine to call it the smallest or the building block of life या फिर the smallest functional unit of life. Smallest functional unit is better. देखो, smallest unit हम लोग क्यों नहीं कहते हैं? Smallest unit हम लोग इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि देखो, cells are not the or it's not the smallest thing that I as an organism am made up of. मेरे पास तो उससे भी I'm made up of even smaller substances. I'm made up of atoms and molecules, the very same thing that my laptop, my table is made up of. Every non-living thing is made up of. तो whenever you want to talk about कि भाई हमारे पास सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर काम कर सकता है. ठीक है, कैसे काम करेगा विल टेल यू. ठीक है, अब let's write in the definition first. So we say that the cells are the smallest functional unit of life. All right. अब let's put it into perspective. अब इसी definition को ना हम लोग एक practically सोचते हैं. If I would ask you guys to name some cells for me, तो क्या बताओगे? Let me start off with the red blood cells. तो एक specific cell जो हम नाम से जानते हैं, that's a red blood cell, right? So can anyone give me another name? Very good, the white blood cell. Okay. और प्लांट सेल में कौन सा वाला स्पेसिफिक सेल? प्लांट सेल तो बहुत सारे होते हैं. प्लांट सेल में स्पेसिफिक सेल कौन सा है? न्यूरॉन, प्लेटलेट्स, वेरी गुड. रूट हेयर सेल्स, वेरी गुड. So let's write down the neurons first. Let's bring in the muscle cell as well. Let's talk about the plants. Let's talk about the mesophyll cells. Let's talk about the root hair cells. ठीक है, प्लेटलेट्स भी आया था. प्लेटलेट्स हम लोगों ने नहीं लिखा. जाइलम इज अ टिश्यू. स्टेम सेल, चलो स्टेम सेल की बात करते हैं बारे में. ठीक है दिशा, विल टॉक अबाउट दैट. अच्छा, आप अगर देखो, अगर हम लोग वट एवर द सेल्स दैट वी हैव रिटन डाउन, आप अगर हम लोग उनको देखें, मसल सेल, अगर हम लोग उनको देखें तो एवरी सेल दैट वी हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन. अब फॉर एग्जांपल अगर तुम कहो कि सर रेड ब्लड सेल, इट हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
वाइट ब्लड सेल हेल्प्स इन इम्यूनिटी, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, न्यूरॉन्स नर्वस इंपल्सेस को जनरेट भी करेंगे, आगे ट्रांसमिट भी करेंगे, मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। प्लांट सेल्स के अंदर जो हमारे पास मीजोफिल सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। रूट हेयर सेल्स हमारे पास जो है वो वाटर और मिनरल आयंस एब्जॉर्ब करते हैं। हर सेल का एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। नाउ सिमिलरली इफ आई वुड से कि अच्छा मैं आई वांट कि मेरी बॉडी के अंदर मेरा जो न्यूरॉन है ना, जो नर्व सेल है, जो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दे, नहीं करेगा। अगर मैं चाहूँ मेरे जो वाइट ब्लड सेल्स है ना वो मसल की तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर दें, नहीं करेंगे। ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि भाई रेड ब्लड सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, नहीं करेगा। So every cell that we have has a particular function, right? And hence we are calling it the smallest functional unit of life. Do we understand this? Similarly, up agar as one of you said, कि cells can also be the smallest unit of life. हम फंक्शनल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी तो कह सकते हैं। मसला क्या है, ये डेफिनेशन ऑलरेडी किसने ली हुई है? This definition is already picked up by protoplasm. ठीक है, वेरी गुड इजाबित। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या है? इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? देखो, प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म इज सिंपली अ फ्लूइड where all the right reactions are going on to generate life. ठीक है, फ्लूइड है, उसके अंदर सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, जो कि मतलब it's that's the only thing special about it, that it contains all the right reactions which are able to give rise to life. वो जो हम लोग spirituality के अंदर बोलते हैं ना, we have the soul and everything. That's basically the protoplasm. अब इसकी मिसाल कैसे? So again a question arises कि सही है सर, fine, we understand what protoplasm is, we understand what the cell is, इसमें फर्क क्या है? देखो, होता क्या है कि whenever I would be teaching in schools or colleges, तो I use a board marker for myself. अब मेरा जो बोर्ड मार्कर होता है ना, उसके अंदर एक कार्ट्रिज होती है जिसके अंदर इंक है। अब अगर मेरे पास सिर्फ इंक हो, आई हैव अ बॉटल ऑफ द बोर्ड मार्कर इंक, लेकिन मार्कर नहीं हो, आई वोंट बी एबल टू राइट विद इट ऑन द बोर्ड, राइट? आई वोंट बी एबल टू यूज इट। मेरे पास इंक तो है, लेकिन मैं उसका करूँ क्या? अगर मेरे पास एक बोर्ड मार्कर हो और उसके अंदर लेकिन इंक नहीं हो, अगेन मैं उस बोर्ड मार्कर का क्या करूँ? Do we get this? तो लेकिन जब तक मैं उस इंक को बोर्ड मार्कर में नहीं डाल दूंगा, जब तक वो बोर्ड मार्कर मेरे लिए फंक्शनल नहीं होगा। द वेरी सेम कॉन्सेप्ट इज ऑफ द सेल्स इन द प्रोटोप्लाज्म। जब तक मैं एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं डालूंगा, द सेल वुड नॉट बी एबल टू जनरेट लाइफ, एंड इट वुडंट बी एबल टू कैरी आउट द फंक्शन दैट इट्स सपोज्ड टू। डू वी अंडरस्टैंड दिस बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई मसला हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो। ऑलराइट, अच्छा जी। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग ना थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को टच करते हैं। ठीक है। अब मेरे पास ना, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स एन ऑर्गेनिज्म हैज, देखो नंबर ऑफ सेल्स एन ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म के पास कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? एक है, एक से ज्यादा है। हम क्या करते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स को ना इसी में क्लासिफाई कर देते हैं। हम सारे ऑर्गेनिजम्स को इसी कैटेगरी में डाल देते हैं। हम ना, so what we'll do is we'll classify the organisms based on the number of cells. हम लोगों ने कहा classification of organisms based on the number of cells that they have. अब इससे हमारे पास दो तरीके के organisms आ जाते हैं। ठीक है। The first type of organisms that we have, we consider them to be unicellular. The second type of organisms that we have, we consider them to be multicellular. अच्छा, अब यूनिसेलुलर, अगेन वी नो दिस, ठीक है, आई नो दैट यू गाइस नो दिस, कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? भाई दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल और वन सेल
ठीक है। अच्छा, मल्टी सेलुलर क्या हो जाएंगे? दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स, मेनी सेल्स। अब now the difficult part comes in when we would talk about the examples. So let's write down three examples of it. So can any one of you give me an example of a unicellular cell? Very organism, very good. Bacteria. बैक्टीरिया के अलावा और क्या हो सकता है भाई? I'm sorry the internet broke up. I'm really sorry about that. अच्छा जी, तो एक तो हो गया हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास हो गई बैक्टीरिया की, ठीक है। सो इज आर देयर एनी अदर एग्जांपल? आई थिंक वन ऑफ यू सेड फंगाई एज वेल, ठीक है, वी गोट टू कीप फंगाई एज वेल, वेरी गुड। अमीबा, वेरी गुड। लेट्स टॉक राइट डाउन अमीबा फर्स्ट, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, फंगस के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फंगाई। प्रोटोजोआ, वेरी गुड, वो अमीबा के अंदर ही आ जाएगा मारुक बच्चा। प्रोटोजोआ इज एन एग्जांपल ऑफ एन अमीबा, ठीक है बेटे, पंगाया हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से इफ आई वर टू आस्क यू फॉर थ्री एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो क्या हो जाएंगी? पैरामीशियम भी मेरे बच्चे नहीं पाए। अच्छा जी, एनिमल्स, प्लांट्स, वेरी गुड। और तीसरा, वेरी गुड, इज हम लोग दोबारा फंगस लिख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या बात हुई कि सिर्फ फंगस हमें दो बार लिखा हुआ है, क्योंकि वी डोंट नीड दिस एनीमोर। अच्छा, अब्दुल्ला, मल्टी सेलुलर नॉट यूनिसेलुलर मेरे बच्चा। अच्छा देखो, होता क्या है, there are certain fungi that exist as unicellular organism, for example yeast, very good, and there are some fungi that exist as multicellular organisms, for example mushrooms, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कहानी है। ऑल राइट, वालेकुम अस्सलाम तैयब। अच्छा जी, now that we know this, अब होता क्या है कि भी हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो तो बस इसमें वॉइस फाइन या फिर सिर्फ तैयब को इशू हो रहा है? बाकियों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? अच्छा, तो वॉइस इसके, ऑल राइट, ऑल राइट, सही है। तैयब ट्राई री लॉगिंग इन बच्चे। थैंक यू बेटा। ऑल राइट नाउ, अच्छा अब देखो होता क्या है, जो हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हमारे पास जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो तो सिर्फ एक सेल के हैं ना, मतलब एक सेल के हैं कि मतलब क्या हुआ कि भाई दे ओनली मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एंड दैट सेल इज कैरिंग आउट ऑल द फंक्शंस that an organism should. It's respiring, it's moving, it has sensitivity, it's showing growth, it's reproducing, it's carrying out excretion, वो nutrition भी ले रहा है। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं लार्जर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, उनके देन दे डोंट एग्जिस्ट एज मास ऑफ सेल्स। द एनिमल्स, द प्लांट्स, हम सिर्फ मास ऑफ सेल्स थोड़ी हैं। हमारे अंदर वी कैन नॉट गो इन एंड स्पेसिफिक डिफरेंट स्कैटर द डिफरेंट सेल्स दैट वी हैव। हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे कि वो लार्जर स्ट्रक्चर्स बना सकें, ठीक है, कि वो लार्जर स्ट्रक्चर्स बना सकें। तो हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, किसमें? इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब होता क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स जो होते हैं, या तो वो सेम टाइप के या फिर वो डिफरेंट टाइप के जॉइन अप होके बनाते हैं स्ट्रक्चर्स दैट वी कॉल एज टिश्यू। मेरे पास बहुत सारे एपिथेलियल सेल थे और वो ज्वाइन अप करा और उन्होंने स्किन की एपिथेलियम बना ली। एपिथेलियम इज अ टिश्यू मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। मेरे पास रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स थे, उन्होंने ज्वाइन अप करा और उन्होंने कनेक्टिव टिश्यू बना लिया जिससे हम लोग ब्लड कह रहे हैं, ठीक है। अब सिमिलरली जो टिश्यूज हमारे पास होते हैं, व्हेन दे ज्वाइन अप, अगेन टिश्यू द सेम और डिफरेंट टाइप्स, व्हाट डू दे गिव अस? दे गिव अस ऑर्गन्स।
अच्छा, ऑर्गन्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं ना, मतलब हमारे पास कुछ बहुत सारे ऑर्गन है जिनका पेयर है, 3 ऑर्गन्स यूजुअली हमारे पास नहीं होते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स स्पेशली द वेरी इंपॉर्टेंट वंस वो सिर्फ एक ही है, ठीक है, स्पेयर के अंदर भी नहीं हमारे पास है। तो ऑर्गन्स जब भी ज्वाइन अप करते हैं अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स, तो हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि भाई डिफरेंट ऑर्गन्स। मैंने आर्टरीज ली, वेन्स ली, मैंने हार्ट ले लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। मैंने माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन ली, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। तो organs when they join up together they give rise to an organ system, and when many organ systems, the renal, the reproductive, the musculoskeletal, the nervous, when they join up together they finally would give you a multi-cellular organism, right? Are we clear till here? यहाँ तक कोई परेशानी मेरे बच्चों? ओके। अच्छा, अब एक चीज देखो, अब ना, और ऑफ ऑल ऑफ देम व्हाट आई एम मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट आर ऑर्गन्स, ठीक है भाई? कैन वी सी ऑर्गन्स? प्रोकैरियोट्स नहीं मेरा बच्चा दिशा बेटा, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स इज यूजुअली यूनिसेल्युलर, यूकैरियोट्स कैन बी यूनी और मल्टी सेल्युलर। अच्छा, वी कैन सी ऑर्गन्स, फिर बात ये हो रही थी कि वी कैन वी सी ऑर्गन्स और नॉट, यस। सिंस वी कैन सी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आर मैक्रोस्कोपिक। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आई डू नॉट नीड अ विजुअल एड टू सी द ऑर्गन्स, right? If I'm going to open up my mouth, I can actually see where my teeth are, where my tongue is. If I'm going to cut open an organism, I could actually appreciate the heart, I could actually appreciate the liver, ठीक है? Alright. अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है कि भाई organs are specific. अब let me give an example कि भाई what do I mean by specific? Let's say अगर मैं एक heart का structure बनाऊं, an oversimplified structure of the heart would pretty much look something like this, ठीक है? The heart on the inside is hollow ताकि उसके अंदर blood pool in कर सके. On the outside it's muscular, so every time the muscle, it's going to, the muscle is going to contract, ठीक है, blood आगे की तरफ push हो जाए, it's acting as a pump. अब let's say one of you inshallah 10 in the next 10 years inshallah becomes a very good cardiothoracic surgeon and would have to go for a heart transplant. लेकिन मसला क्या है कि भाई तुम्हारे पास डोनर हार्ट नहीं हो, हाँ तुम्हारे पास एक डोनर किडनी रखी हुई। So if you're going to put a kidney in place of a heart in a person, would that person survive? No. क्यों? Why? Why? Why can the kidney not carry out the function of the heart? ये बताओ मुझे। वेरी गुड, इज अ वेरी गुड। देखो होता क्या है, एवरी ऑर्गन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उसको अलाउ, दूसरा फंक्शन कैरी आउट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका फंक्शन उसको अलाउ नहीं, उसका स्ट्रक्चर उसको अलाउ नहीं करेगा। अब अगर हम लोग हार्ट और किडनी को कंपेयर करें, किडनी का काम है एक्सक्रीशन, उस एक्सक्रीशन के लिए किडनी के पास नेफ्रॉन्स होता है। हार्ट किडनी का फंक्शन कैरी आउट नहीं कर सकता क्योंकि हार्ट के पास नेफ्रॉन्स नहीं है। सिमिलरली किडनी हार्ट का फंक्शन कैरी आउट इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज द किडनी अनलाइक द हार्ट इज नॉट हॉलो, उसके अंदर ब्लड पूल ही नहीं करेगा। द किडनी अनलाइक द हार्ट इज नॉट मस्क्यूलर, राइट? So every time the, so
the kidney cannot contract. If it's not contracting, it's not pumping the blood. All right. तो ये चीज है. तो इससे हमें पता लगता है कि भाई organs to be, they are specific because they have a specific complementation or structural complementation to their structure, to their function, कि उनका जो structure है ना वो उनको complement करता है उनका function carry out करवाने के अंदर. एक बात याद रखिए, हम लोग एंजाइम के अंदर भी दोबारा वो करेंगे. कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? टू थिंग्स गोइंग टुगेदर, और टू और मोर थिंग्स गोइंग टुगेदर ना. अब इसका मतलब ये नहीं कि सेम हो, ठीक है, सेम नहीं हमें मतलब नहीं होता. अब अगर मैं कहूँ कि भाई फ्रेंच फ्राइज के साथ मैं चॉकलेट खाऊं, chocolate and french fries do not go together. Ketchup and french fries do. तो ketchup complements french fries, chocolate does not. ठीक है जी. अच्छा, अब हुआ क्या कि भाई once we advanced with the microscopes we found out कि यार सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पेसिफिक हैं, और लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक है. वो स्पेसिफिक तो है, वो एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर माइक्रोस्कोपिक. तो हमने उनको क्या नाम दे दिया? हमने कहा कि भाई सेल्स के अंदर ना छोटे ऑर्गन्स होते हैं. वी स्टार्टेड टू कॉल देम organelles. We started to call them organelles. All right. अच्छा जी. Now, these organelles work on the basis of something that we call as division of labor. देखो इसकी definition they won't ask you or anything, ठीक है, but you need to understand this concept. देखो होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि I have to clean my room, so that's a particular function, right? इस तरीके से सेल्स के भी हम लोगों ने देखा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. एक न्यूरॉन नर्वस इंपल्स को जनरेट ट्रांसमिट कर रहा है. So what happened was कि मतलब few of you guys decided to help me. मैंने कहा I'm going to sweep the floor, one of you mops it, one of you dust the windows or dust the tables. तो हम लोगों ने क्या करा, काम वो कर लिया, डिवाइड कर लिया. इसी तरीके से सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये भी क्या करते हैं, अपने आपस में काम डिवाइड कर लेते हैं. अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनल ने क्या करा, एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दी. दूसरे ऑर्गेनल ने प्रोटेक्टिव फंक्शन शुरू कर दिए. तीसरे ने प्रोटीन्स के लिए कोड करना शुरू कर दिया. चौथे ने प्रोटीन्स बनाना शुरू कर दिए. पांचवे ने सेल डिवीजन को कैरी आउट करने में हेल्प कर ली. अब इन सारे अलग अलग काम का जो एक निचोड़, एक मिक्सचर, जो एक एंड प्रोडक्ट जो होगा, that's going to be the function of the cell. Do we understand this, guys? Do we understand what division of labor means? Okay, okay, good enough, good enough. अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, let's talk about the different organelles of the animals and the plant cells. ठीक है. बैक्टीरिया को जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, विल टच बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरस. देन वायरस तो फिर ए सेलुलर है. अब what we'll do is we'll talk about the structure of an animal cell first. अच्छा, हम यूजुअली लिखते हैं टिपिकल एनिमल सेल. टिपिकल एनिमल सेल का मतलब क्या हुआ कि एक नॉर्मल एनिमल सेल. तो देखो सारे एनिमल सेल्स के अंदर ये कोई मेरे पास एक ऐसा एनिमल सेल नहीं है. आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर एनिमल सेल दैट has all the organelles present inside of it. uh, I'm going to draw an animal cell that would contain organelles that you would only find in an animal cell. ठीक है, तो fair. Now, before we begin, the very first thing that we're supposed to remember is that the animal cells are always irregular.
this does not mean that they don't have a particular shape. They're just wavy, right? So let's say if I would talk about a red blood cell, we know that the red blood cell have a biconcave shape. It has a biconcave shape, but it's, it's wavy. Like not a very good biconcave shape. All right. Sometimes we have these cells in a, or not sometimes we have these cells in a trachea that are rectangular. They're rectangular, but they're wavy, they're irregular. They're not going to be something like this. All right. Acha, khair, 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 khair. The very first thing that we'll do is we'll demarcate a cell. Demarcate का मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसकी boundary बनाएंगे ना. So let's draw the boundary of a typical animal cell. This outline, this boundary of the animal cell that we have is what we call as the cell membrane. Now, two things we're supposed to know about the cell membrane, right? Number one, iska nature, and number two, what it is made up of, right? Acha. So cell membrane, whenever we talk about cell membrane of any cell, so are cell membranes fully permeable or are they partially permeable? The cell membranes are partially permeable. All right. Partially, semi, ठीक है, selectively. I like to use the word semi-permeable because it's much shorter. Right. हम लोगों ने कह दिया it's semi-permeable in nature. अच्छा, what is it made up of? It's made up of, every structure that I have in my body is either made up of lipids, proteins, or carbohydrates. The cell membranes that we have is made up of lipids. All right, lipids are basically fats. अच्छा, अब हमारे पास cell membrane तो आ गई, ठीक है? Now we need to give rise to life inside the cell. So we're going to put this fluid, this protoplasm. The word plasm basically means fluid. The word protoplasm basically means basic fluid. ठीक है? Once this protoplasm goes, all the cell membranes they are made up of lipids, all of them. Okay, in all organisms. Acha, khair. Uh, this second organelle that we have is this fluid, and this fluid would be called as the cytoplasm anyway. Sorry, would be called as cytoplasm. It won't be called as a protoplasm anymore. क्यों? देखो, the word cyte basically means cell. Lymphocyte, phagocytes, right? जीते बेटा. Protoplasm क्या होता है? Protoplasm is the gel-like fluid where all the right reactions that are needed to generate life occurs. ठीक है? Yes, it is good. खैर, अच्छा, अब देखो साइटोप्लाज्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सेल का फ्लूइड है. तो अगर हमें बायोलॉजी के अंदर थोड़ा से, अगर हम लोग लैटिन को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेना, तो इट्स गोइंग टू मेक अ लाइफ इजियर. अच्छा, अब साइटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या करता है, इसको थोड़ी देर में देखते हैं. लेट्स मूव अहेड. ठीक है? नाउ let's talk about the largest organelle that we have. That organelle looks something like this. Right. This organelle that we have, very good, is the nucleus. All right. अच्छा, nucleus का काम क्या है? हम कहते हैं nucleus controls the activities of the cells. ठीक है? अब कैसे कैसे like how? ठीक है? That's one thing that we're going to decrypt today. And before we talk about that, what we're going to do is we're going to talk about the parts of the nucleus basically. ठीक है? अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो भाई न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन है.
The membrane of the nucleus that we have is what we call as the nuclear membrane. अच्छा, अब अगर हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखें, राइट, वेरी गुड बच्चे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बीच में ना गैप्स हैं, इसके बीच में गैप्स आते हैं। This makes the nuclear membrane porous. Porous का मतलब क्या हुआ? Having pores. अब since it's porous, cytoplasm can leak in. अब जब साइटोप्लाज्म लीक होके न्यूक्लियस में जाएगा, it's not going to remain the cytoplasm anymore. It's going to become nucleoplasm. All right. It's going to be called as the nucleoplasm anymore. So it would be called as a nucleoplasm. Again, वही साइटोप्लाज्म में, लेकिन अब न्यूक्लियस में चला गया तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ठीक, अच्छा ना, तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है, और दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा बात करेंगे। These thread-like structures that we have are called as chromatin fibers. They're practically the same thing as the chromosomes. ठीक, बात क्या याद रखने वाली है कि chromatin fibers क्या होते हैं? They basically contain the DNA. All right? हमें बस फिलहाल ये पता होना चाहिए chromatin fibers क्या है? They just coiled up DNA molecule. They contain DNA. ये भी बात गलत नहीं है। अगर हम लोग DNA को देखें, DNA के भी अपने सेगमेंट्स होते हैं। These segments are what we call as genes. These segments of DNA are what we call as genes. Now, can anyone tell me what a gene is? Yeah, chalo, let me put it this way. Can anyone tell me where do we get our genes from? अच्छा जी, so again we get them from our parents, right? अब देखो ये चीज क्या है, इसी चीज को समझिएगा। अभी जैसे कि मैंने बताया, most of the structures that we are made up of are proteins, ठीक है? Proteins are is something that is giving me the structure. All right. अब होता क्या है कि भाई there are some proteins that are shared within all the organisms. For example, मैं कहूँ भाई मेरे पास ही myelin है, myelin gives the is the coloring pigment of the skin, the hair, the eyes, right? I say कि भाई मेरे पास keratin है, which gives or makes the hair and the nails. I have different enzymes. All enzymes are made up of proteins. If we go down to a more microscopic level, hemoglobin is a protein. Your antibodies are proteins. The point is कि देखो होता क्या है कि हमारे पास प्रोटीन्स जो है वो सब सिमिलर है, but the way that they're designed to make us look or make us behave, that's different in every individual, and that's why we look different. That's why every sibling look different, but at the very same time, uh, you know, every offspring looks the same as the parent, right? तो होता क्या है, these genes that we're receiving from our parents are basically codes. In other words, what are my parents giving me in form of genes are codes कि अच्छा this organism that we are producing, उसके proteins किस तरीके से बनेंगे। Do we understand this? तो मेरे सेल में जितने भी प्रोटीन्स हैं जो कि फंक्शनल हैं या वो है, वो कौन कोड कर रहा है? वो जीन्स कोड कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन कोड कर रहा है? वो जीन्स कोड कर रहा है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? जीन की कोडिंग हो रही है, जीन्स बन नहीं रहे। सॉरी, प्रोटीन्स की कोडिंग हो रही है, प्रोटीन्स बन नहीं रहे हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस गाइस? ये वाली बात समझ में आई? ऑल राइट। अच्छा जी, अब ये चीज देखिएगा, अब ये चीज देखिएगा। अच्छा नहीं, तैयब नहीं आई, तैयब सही है, फाइन, विल बी गो थ्रू इट वंस अगेन। देखो तैयब, व्हाट वी मीन बाय जीन्स इज कि देखो हमारे पेरेंट्स हमें कोड दे रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हारिस है
तो हारिस के जो प्रोटीन्स बनेंगे, हारिस के जितने भी प्रोटीन्स हैं वो किसकी तरह दिखेंगे? वो हमारी तरह दिखेंगे। ठीक है। द शेप ऑफ हारिस आईज, डू वी अंडरस्टैंड दिस? राइट। वो प्रोटीन्स बना नहीं रहे हैं, वो प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं सिर्फ। वी गेट दिस अगेन बेटे? हाँ, बस इतनी सी बात है। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट दिस, ऑलराइट? डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट दिस। हाँ, now let's come to the place where proteins are being made. ठीक है। होता क्या है, मेरे पास प्रोटीन्स कोड तो जीन्स कर रहे हैं, लेकिन प्रोटीन्स बना कौन रहा है? लेकिन प्रोटीन्स बना कौन रहा है? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्रोटीन्स बनाने के लिए हमारे पास ऐसे मफिन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, मफिन कह लो या फिर यू नो से कपकेक शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे करके। These cupcake shaped structures are what we call as ribosomes. Very good. तो अगर कोई पूछे कि भाई प्रोटीन के लिए कोड कौन कर रहा है, तो आप लोग बता देंगे जीन्स कोड कर रहे हैं। अगर कोई पूछे कि भाई प्रोटीन्स बना कौन रहा है, आप बता देंगे राइबोसोम्स बना रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन देखो होता क्या है, हमारे पास जितने भी सेल्स होते हैं ना, हर कोई सेल, हर सेल का एक पर्टिकुलर नीड होता है प्रोटीन्स का। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देयर आर सम सेल्स व्हिच would need particular type of proteins. For example, if we talk about the bone marrow cells, जो बोन मैरो सेल्स हमारे पास हैं वो हीमोग्लोबिन बनाते हैं बिफोर दे कैन प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स। राइट। बिफोर दे कैन प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स वो क्या करते हैं? वो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब हीमोग्लोबिन कोई और सेल में तो नहीं बनेगा। ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन बार बार बनना है, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनना है। तो हर सेल के पास जो भी राइबोसोम्स होते हैं ना, वो टेलर मेड एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर होते हैं। तो ये राइबोसोम कौन बनाता है? राइबोसोम्स आर मेड बाय द न्यूक्लियस। दिस ब्लैक spot in the nucleus that we have is a structure that we call as the nucleolus. वेरी गुड मेरा बच्चा। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, इसका काम क्या है? ये बनाता है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करेंगे? राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएंगे। So ribosomes are made inside the nucleus and they go out through the nuclear pore into the cytoplasm. Do we understand this, guys? यहाँ तक कोई मसला बच्चों? अच्छा जी। अब now let's move on with the next organelle, which are right above the nuclei. There's a pair of them. This organelle, the fifth one that we have, are called as the centrioles. अच्छा, ये centrioles क्या करते हैं? These centrioles, they help in what? Cell division. इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सेंट्रियोल्स के बगैर सेल डिवीजन हो ही नहीं सकता। बस ये क्या करते हैं कि प्रोसेस को तेज कर देते हैं। अब लेट मी गिव एन एग्जांपल। कैन आई कुक फूड इफ आई डोंट हैव एन a stove? Yes, I can. I can, put some logs on fire, but the process is going to take longer, right? But if I'm going to have a stove and if the gas will be connected to it, the food will be cooked earlier. तो सेंट्रियोल्स का भी ये हिसाब किताब है। ठीक है। अच्छा, अब सेल इतने सारे काम कर रहे हैं, प्रोटीन से बना रहा है, प्रोटीन लिक्विड भी कर रहा है, सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है,
Don't you think it would need some sort of energy? It does. Energy mostly inside the cell is produced by this organelle that looks something like this. This organelle that we have, very good. It's called as the mitochondria. अच्छा, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, क्या बताओगे? What does the mitochondria do? It is the powerhouse of the cell. We know this. That's a property. Function क्या है? Very good. होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं it makes very good. It makes energy in form of ATP. ठीक है, very good. Uh, by what process? हाँ जी, कौन से वाले प्रोसेस से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है? वेरी गुड, रेस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि भाई सर रेस्पिरेशन की भी तो दो टाइप्स हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। क्या माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कर सकता है? दोनों नहीं करेगा, कौन सी वाली रेस्पिरेशन करेगा? फिर हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ओनली कैरीज आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन के बगैर माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजलेस। Then from the very same thing, another question sprouts up. Okay, sir, if mitochondria is carrying out aerobic respiration, where does anaerobic respiration takes place? Anaerobic respiration takes place inside the cytoplasm. All right. रेड ब्लड सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन क्या वो उनको एनर्जी की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो वो एनर्जी कैसे करेंगे? उनके पास साइटोप्लाज्म तो है ना। सो दे प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, अब बस दो और ऑर्गेनल्स रहते हैं। ठीक है, देन आई लीव यू गाइस। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, नॉट इन ऑल सेल्स, इन आई थिंक ओनली वन टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी, एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की जरूरत का मतलब क्या हुआ? सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल डाइजेस्टेड फूड हैव टू बी एब्जॉर्ब। अब मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, इन अ रूम इफ आई ओनली हैव वन डोर, only one person will be able to cross through this in a particular time. लेकिन अगर मेरे पास दो दरवाजे और हो जाए in the very same time, will more people be able to move across this room? Yes. ठीक है, इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सेल मेम्ब्रेन इज partially permeable, मतलब substances can get in, substances can get out of it. ठीक है, अब मुझे एक बात ये बताओ, अगर मेरे पास एक इतने बड़े स्पेस के अंदर एक इतनी सी मेम्ब्रेन होती और उसमें 1 2 3 4 5 6 particles और 6 molecules of anything could pass through, क्या मैं इतने से ही स्पेस के अंदर एक ज्यादा बड़ी मेम्ब्रेन लगा सकता हूँ? मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। मैं उसको थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगा। अब उसी मेम्ब्रेन से कैन मोर देन 6 थिंग्स मूव अक्रॉस? ज्यादा बड़ी मेम्ब्रेन है ना, एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नियरली डबल सब्सटेंसेस आर बीइंग पास थ्रू। इसी तरीके से those cells which are supposed to carry out absorption, what they do is that they extend or they fold their membranes, forming these finger-like projections, forming these invaginations. These finger-like projections that allow more absorption to occur, they are called as microvilli. All right. What are microvilli? These are finger
like projections that increase surface area to volume ratio. अभी हम लोगों ने surface area to volume ratio नहीं पढ़ा, so we're not going to go into much detail. बस ये बात याद रखो, they're finger like projections that increase what? Absorption. All right, is it clear? अब एक आखिरी चीज ना, one last. अच्छा देखो होता क्या कि ना, sometimes in a lot of places in the body we need to remove stuff. For example, मेरे wind pipe के अंदर, मेरे trachea के अंदर ना mucus buildup हो रहा है, ठीक है, and every day 1 to 1.5 liters of mucus is being produced. अच्छा, अब उस mucus से करें क्या? अगर वो mucus वहीं रह जाएगा तो मतलब it's going to block my airway. So that mucus has to be moved up into the mouth. So either I can swallow it into the stomach, or either I can, if it's in larger quantity, I can throw it out. उसको ऊपर तक लेकर कौन आएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी? कुछ सेल्स के अंदर हमारे पास ऐसे हेयर लाइक प्रोटीन्स होते हैं, हेयर नहीं होते, दे नॉट हेयर प्लीज, दे नॉट हेयर, बट दे आर हेयर लाइक प्रोटीन्स. All right, and what do these hair like proteins do? They contract in a sweeping motion. They contract in a sweeping motion, झाड़ू की तरह. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर म्यूकस ये रहा ना, जब वो स्वीप करेगा तो म्यूकस इस पोजीशन में आ जाएगा, उधर जाएगा तो फिर इधर चले जाएगा, ठीक है. So these hair like structures, again they're not hair. Very good, Disha. Sorry, I have mispronounced name. These are called as the cilia. What are cilia? These are hair like extensions that contract in a कैसा motion? Sweeping motion. So let's remove this. All right. So that's the structure. These are the 8 organelles in a typical animal cell. मैंने ज़्यादा ऑर्गेनल्स इसलिए पढ़ा दिए हैं ताकि आगे जब हम लोग फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट माइक्रोवेलाई. हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो भाई उसमें माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म आ जाएगा. हम गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे, उसमें सीलिया आ जाएगा. सो नाउ दैट वी नो ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनल्स फ्रॉम बिफोर, हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा जीन्स वगैरह के बारे में. तो बट नाउ दैट वी नो एटलीस्ट नो द नेम्स ऑफ दीज ऑर्गेनल्स फ्रॉम बिफोर, जब हम लोग यही चीज दोबारा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तो हम लोग बिल्कुल शुरू से नहीं पढ़ रहे होंगे. ऑलराइट, अच्छा है. सो विल स्टॉप हियर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क.